آج ویو 360 میں امریکی عوام کی اکثریت افغان جنگ کے خاتمے کے لیے امن مذاکرات کی حامی. پچھلے ہمارے بچے رہ گئے تھے، وہ بچے جو ہے وہ بھی ویکسینیٹ ہو جائے. پاکستان میں 1994 سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم آج تک پولیو ختم کیوں نہیں کر پائی؟ اور امریکی سپریم کورٹ کی جسٹس روتھ بیڈر گنزبرگ کے انتقال سے نئی سیاسی محاذ آرائی کا خطرہ کیوں؟ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں اسد اللہ خالد. نیو یارک میں واقع یوریشیا گروپ فاؤنڈیشن کی جانب سے کرائے گئے عوامی رائے کے ایک جائزے کے مطابق افغانستان میں 19 سالہ امریکی جنگ کے خاتمے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کے تعاون سے ہونے والے افغان امن مذاکرات کو ریپبلکن اور ڈیموکریٹک ووٹرز کی رضامندی حاصل ہے. اس غیر منافع بخش تنظیم کے سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ امریکی نوجوان رائے دہندگان خاص طور پر غیر ملکی تنازعات میں امریکی مداخلت سے تنگ آ چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کانگریس فوجی اخراجات میں کمی کر دے. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. امریکا اور اس کے نیٹو اتحادیوں نے 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے کچھ دن بعد ہی افغانستان میں فوجی کارروائیاں شروع کر دی تھیں. لگ بھگ 2 دہائیوں اور اندازاً 1,60,000 اموات کے بعد بہت سے امریکیوں کا کہنا ہے کہ وہ جنگ سے تنگ آ چکے ہیں اور تمام امریکی فوجیوں کو گھر آتے دیکھنا چاہتے ہیں. تنظیم کے حالیہ سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں سے منسلک زیادہ تر امریکی ٹرمپ انتظامیہ کی حمایت یافتہ بین الافغان امن مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں جو ستمبر 12 کو دوحہ میں شروع ہوئے. What we found is support for the peace talks that are being led by Zalmay Khalilzad. ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کے 63% حامیوں کے ساتھ ساتھ بائیڈن کے 61% حامی بھی زلمے خلیلزاد کی قیادت میں ہونے والے امن مذاکرات کی حمایت کر رہے ہیں. As well as 61% of Biden supporters. مذاکرات کے آغاز پر وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ امریکہ 2021 کے موسم بہار تک افغانستان سے تمام فوجیں واپس بلانے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے. امریکہ فروری میں طالبان سے معاہدے کے بعد وہاں اپنے فوجیوں کی تعداد کم کر کے 8,600 تک لا چکا ہے. یوریشیا گروپ فاؤنڈیشن کے سروے میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال سے ایسے لوگوں کی تعداد 30% سے کم ہو کر 15% ہو گئی ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ امریکیوں کو تب تک افغانستان میں رہنا چاہیے جب تک تمام دشمنوں کو شکست نہیں دے دی جاتی. سروے میں نسبتاً نوجوان امریکیوں نے اسے لامتناہی جنگ کہتے ہوئے اس سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا. وہ افواج کی تعیناتی کے بجائے سفارتکاری کے اور ایسے امریکی صدر کے حق میں ہیں جو مخالفین سے براہ راست معاملہ طے کرے اور عالمی معاملات میں زیادہ حصہ لے. The idea that we would sit down with our adversaries. امریکی چاہتے ہیں کہ امریکہ مختلف معاہدوں میں دوبارہ شامل ہو، چاہے وہ عالمی ادارہ صحت ہو، پیرس موسمیاتی معاہدہ یا ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ. 70% امریکیوں نے اس طرح کے معاہدوں میں دوبارہ شامل ہونے کی حمایت کی. 70% supported rejoining agreements like that. ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان سے انخلا کے منصوبے کی حمایت کرتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جنگ کے بعد افغانستان میں دہشت گردی کے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پینٹاگون مختصر تعداد میں فوجی دستے وہاں رکھے. سنڈی سین کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ. اسی حوالے سے وائس آف امریکہ کی نخبت ملک نے جنوبی ایشیائی امور کے ماہر مائیکل کوگلمن سے پوچھا کہ ماضی کی جنگوں کے مقابلے میں امریکی تاریخ کی اس طویل ترین جنگ پر امریکی میڈیا اور عوام بظاہر خاموش کیوں ہیں اور یہ خاموشی امریکی پالیسی پر کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے. میں یہ کہوں گا کہ پچھلے سالوں کی نسبت اس وقت یہ جنگ عوام کی نظروں میں زیادہ ہے اور یہ محض اس لیے نہیں ہوا کہ صدر ٹرمپ نے امن مذاکرات کا اور افواج کی واپسی کی گفتگو کا آغاز کیا بلکہ افغانستان پیپرز کا سامنے آ جانا بہت اہم تھا. واشنگٹن پوسٹ جیسے اہم اخبار کی جانب سے تمام دستاویزات کی ریلیز جن سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی پالیسی کے حساب سے جنگ کا یہ معاملہ کس قدر خراب ہو چکا تھا. میرا خیال ہے اس سے ایسے بہت سے امریکی جنہوں نے کبھی اس معاملے پر توجہ نہیں دی تھی انہیں بھی حقائق کا علم ہوا اور اس سے امریکی عوامی نمائندوں نے اس پر توجہ دی اور اب ہم افغانستان کے بارے میں پچھلے کچھ مہینوں سے اتنا کچھ سن رہے ہیں جو ہم نے پچھلے کئی سالوں میں نہیں سنا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے سابق قومی سلامتی کے مشیر اور ریٹائرڈ فوجی جنرل HR میک-ماسٹر کہتے ہیں کہ افغانستان سے فوجیں واپس بلانا ایک غلطی ہے. آپ کے نزدیک اس تشویش کے کیا معنی ہیں اور افغان امن عمل
अमल में इसकी अहमियत कितनी है? Importance of such a concern for the whole process. McMaster's view is an unpopular one. इस वक्त वाशिंगटन में मैकमास्टर का नजरिया एक गैर मकबूल नजरिया है, क्योंकि उसे हुकूमत के अंदर और बाहर दोनों जगह ही कोई ज्यादा हिमायत हासिल नहीं। लेकिन फिर भी ये एक अहम नजरिया है। मैकमास्टर एक अहम बात को उठा रहे हैं कि भले ही हमारे पास अफवाज को वापस बुलाना आखिरी हल हो, लेकिन अफगानिस्तान को यूं छोड़ देना खतरे से खाली नहीं है। हाँ, ये बहुत मुश्किल भी है और मेरे नजदीक लब्बे लुबाब ये है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए कोई अच्छा ऑप्शन भी नहीं। रुकना भी बुरा है, चले जाना भी बुरा है। बीच के किसी रास्ते की तलाश की कोशिश जरूर है, मगर उसे ढूंढना आसान नहीं है। So it's just a very unfortunate state of affairs. So President Trump's सदर ट्रंप का अफगानिस्तान से फौजें वापस बुलाने का फैसला हम देखते हैं कि पेंटागन की तरफ से सराहा गया है। तो क्या आप समझते हैं कि इस मामले पर अमेरिका की सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप एक ही सफ़े पर है? concerned. Well, I mean, certainly there will always be some in the military that think that यकीनन फौज में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि मजीद वसाइल और वक्त खर्च किए जाने की ज़रूरत थी और इससे तालिबान के खिलाफ कामयाबी मिल सकती थी। लेकिन अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब अमरीकी हुकूमत तालिबान के साथ एक ऐसा मुआहिदा कर चुकी है जिसके मुताबिक अमरीकी अफवाज को वहाँ से जाना होगा और दोनों धड़ों को आपस में लड़ाई बंद करना होगी। लेकिन इसके बावजूद जब हम जंग के खिलाफ एक सिफारती हल पर वाशिंगटन में सबके मुत्तफिक होने की बात करते हैं, तो न सिर्फ सिविलियन लीडरशिप के दरमियान बल्कि मिलिट्री लीडरशिप में भी इस बात पर इत्तेफाक नजर आता है। leadership, but also within the military leadership. With these three parties. एक हफ्ता पहले वाशिंगटन, काबुल और तालिबान के दरमियान दोहा में शुरू होने वाली बातचीत से आप किस हद तक पुरउम्मीद हैं? Dialogue that started a week ago. Taliban wants to impose. तालिबान अफगानिस्तान में एक बहुत ही मुख्तलिफ किस्म का सियासी निज़ाम मुतारिफ करवाना चाहते हैं जो लगभग उसी मजहबी सरकारी निज़ाम से मिलता जुलता है जो 1990 की दिहाई के आखिर में तालिबान ने अफगानिस्तान में कायम किया था। जबकि अफगान हुकूमत, आप चाहे उसे जो भी कह लें, सियासी निज़ाम में जमहूरियत का तसव्वुर रखती है। एक और वजह जो मुझे इस बातचीत के आगे बढ़ने और कामयाब होने पर शक में मुब्तला करती है वो ये कि तालिबान को सबकत हासिल है, उनके पास वक्त है। अगर उन्हें अफगान हुकूमत की पेशकश पसंद नहीं आती तो वो उसे रद्द करते हुए मैदान जंग में वापस जा सकते हैं, और वो ऐसी जंग है जिसके बारे में उन्हें यकीन है कि वो जीत कर ही रहेंगे। Back to the battlefield and keep fighting a war that it believes it is winning. अमरीकी इंतखाबात पर अहम और मुनफरिद मालूमात के लिए और इसके अलावा पाकिस्तान और खित्ते भर की खबरों और अहम रिपोर्ट्स के लिए आप आ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज facebook.com/VOA उर्दू पर। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। पाकिस्तान बाकायदा तौर पर आलमी सतह पर पोलियो के खात्मे की मुहिम में सन 1994 में शामिल हुआ। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उस वक्त मुल्क भर में इस वबा के 24,000 से ज़ायद केसेस थे। एक वक्त में पाकिस्तान में पोलियो केसेस में नुमायां कमी भी देखने को मिली, लेकिन इस लाइलाज बीमारी ने पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 दहाइयों से ऐसे पंजे गाड़े हैं कि ख़त्म होने की बजाय पोलियो केसेस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। आखिर ऐसी कौन सी वजूहात और चैलेंजेस हैं कि हर गुजरते दौर के साथ लोगों में नए नए खदशात जन्म लेते हैं जो कि पोलियो वर्कर्स का काम मज़ीद मुश्किल कर देते हैं। सेहत आमा के लिए अपनी जान खतरे में डालने वाले इन पोलियो वर्कर्स को अब तो कोरोना वायरस का खदशा भी है। मज़ीद जानते हैं पेशावर से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे नजरुल इस्लाम की रिपोर्ट से। पोलियो के खिलाफ लड़ाई के फ्रंट लाइन वर्कर्स एक बार फिर घर घर दस्तक दे रहे हैं। गर्मी और धूल में गली गली सफर करना पहले भी आसान न था। अब समाजी फासला, मास्क और फिर कतरे पिलाने से पहले और बाद में सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी मुस्तकिल करना पड़ रहा है। तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। हम तमाम SOPs को फॉलो कर रहे हैं और ये कैंपेन कर रहे हैं। इसके अलावा कोरोना जो है उसके केसेस में कमी आई है, लेकिन फ़िलहाल अभी भी ख़तरा लाहक है। हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और जो पिछले हमारे बच्चे रह गए थे इस वजह से जो कैंपेन नहीं हुई थी, तो हम इस दफ़ा हमारी कोशिश है कि वो बच्चे जो है वो भी वैक्सीनेट हो जाए, वो मिस ना हो। कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में पोलियो मुहिम तकरीबन 4 माह के लिए रुक गई थी। जुलाई में महदूद पैमाने पर इसका आगाज हुआ और फिर अगस्त में मुल्कगीर सतह पर मुहिम दोबारा शुरू हुई। एहलकारों का कहना है कि हर बार उन्हें अवाम की तरफ से मुश्किलात का सामना रहता है। सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे लिए आ रहा है वो हमारे लिए इंक्वायरी कराने हैं
लोगों के दिल में कोरोना के हवाले से काफ़ी ख़दशात है, लोग अभी भी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, तो हम उनको अपने तरीके से समझा रहे हैं। हमें पोलियो पिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये लोग बेवक्त आ जाते हैं, कभी दोपहर को कभी शाम को, बच्चे सोए होते हैं, उनको जगाना पड़ता है। तो प्लीज़ इनको चाहिए कि सुबह के वक्त आए या शाम के वक्त आए। आदाद शुमार बताते हैं कि कोविड-19 की वबा के बायस पोलियो मुहिम रोकने से माजी में हासिल की गई कामयाबियां बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। रवां साल के इब्तदाई 9 माह के दौरान मुल्क भर में अब तक पोलियो के 72 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता साल केसेस की तादाद 147 थी। कुल बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है वो मुतासिर हुआ है और इस दौरान मार्च से लेकर अब तक हमारे केसेस भी जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। तो इम्यूनिटी गैप ज़रूर आया है जब से ये पोलियो कैंपेन्स हमने रोके हैं कोविड की वजह से। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम को माली मुश्किलात का भी सामना है। जून के महीने में सुबह खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में माहवार तनख्वाह पर काम करने वाले हज़ारों पोलियो वर्कर्स की नौकरियां ख़त्म कर दी गईं। इंतज़ामिया का कहना है कि वो प्रोग्राम्स को असर नो तश्कील दे रहे हैं। हमारे कुछ अज़ला जैसे पेशावर, खैबर साउथ, नॉर्थ वज़ीरिस्तान और टांग और बनू के कुछ यूसीज़ में कम्युनिटी बेस्ड वैक्सीनेशन का सिस्टम चल रहा था। जब हमने इस सिस्टम का जायज़ा लिया तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये सिस्टम जो है तवक्कुआत के मुताबिक डिलीवर नहीं कर रहा। तो हमने मुकम्मल तौर पर इनको फ़ारिग नहीं किया, हमने उनको दोबारा री एम्प्लॉय कर लिया, लेकिन मोबाइल टीम की शक्ल में एम्प्लॉय कर लिया। लेकिन जो फ़र्क आया है कि पहले उनको मुस्तकिल तनख्वाह मिलती थी और अब कैंपेन के दौरान उनको तनख्वाह जो है वो मिला करेगी। रवां माह की पोलियो मुहिम का टारगेट 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना है। 2012 से अब तक पोलियो टीम्स पर हमलों में 70 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। इनमें पोलियो वर्कर्स के अलावा उनकी हिफाजत पर मामूर पुलिस अहलकार और कुछ आम शहरी भी शामिल हैं। कोविड-19 समेत दीगर चैलेंजेस के बावजूद ये टीमें अपना काम मेहनत और लगन से जारी रखे हुए हैं। नज़रुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। तुर्की में डॉक्टर्स और मुकामी सियासतदान इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि हुकूमत कोरोना वायरस की दूसरी लहर के आदादोशुमार को कम करके पेश कर रही है। ताज़ा तरीन सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में रोज़ाना औसतन 1700 नए मरीज सामने आ रहे हैं और 60 के करीब हलाकतें हो रही हैं। ताहम डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजों और हलाकतों की तादाद इससे ज़्यादा है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट से। सरकारी आदाद के मुताबिक कोरोना वायरस के दोबारा फैलाव ने तुर्की के अनातोलिया इलाके में शैनली उर्फा नामी शहर को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। ताहम डॉक्टरों का कहना है कि असल सूरत हाल सरकारी रिपोर्टों से कहीं ज़्यादा बदतर है। इन दिनों वो रोजाना सरकारी तौर पर मुल्क भर में 1500 नए केसेस बता रहे हैं, लेकिन सिर्फ सैनली अरफा में बाज़ दिनों में हमारे पास 6 से 700 मरीज आते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जो आदाद शाया किए जा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं। इस तशवीश का इजहार तुर्की के 2 बड़े शहरों अंकारा और इस्तांबुल के मेयर्स ने भी किया है। उनके मुताबिक वजारत सेहत के आदाद शुमार और वो आदाद जो उन्हें मकामी सतह पर मिलते हैं मेल नहीं खाते। दोनों मेयर्स का ताल्लुक सदर अर्दवान की मुखालिफ रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी से है। डॉक्टर कैनन गैनगच कहते हैं कि हुकूमत माशी नुकसान को महदूद करने की कोशिश कर रही है। ये सयाहत का सीज़न है, इस वजह से इनकी तशवीश का पहलू मुआशी है। इन्हें फ़िक्र है कि अवाम इश्तियाल में आएगी और वो नहीं चाहते कि ऐसे बुलंद आदाद की वजह से लोग इनकी नाकामियाँ देखें, सो वो दुरुस्त मालूमात फराम नहीं कर रहे। तुर्की की वजारत सेहत और सूबा शैनली उर्फा के गवर्नर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। शैनली उर्फा में मुकीम सहाफ़ी इब्राहिम वेगोर कहते हैं कि हुकूमत पूरी मालूमात फराहम नहीं कर रही। 1 माह कबल तक वो सैनली अरफा के कोरोना वायरस के मरीजों के आदाद व शुमार देते थे, लेकिन अब वो ये मालूमात जारी नहीं कर रहे। अब हम सिर्फ वो आदाद शाया कर रहे हैं जो हुकूमत पूरी तुर्की के लिए देती है। शैनली उर्फा के शहरियों को भी सरकारी आदाद शुमार पर शक है। मेरे नज़दीक असल तादाद कहीं ज़्यादा है। सैनली अरफा में ये वायरस इतना क्यों फैल रहा है, तो इसकी वजह यह है कि कोई भी क़वायद व ज़वाबित की परवाह नहीं करता। वो मास्क नहीं पहनते, वो इस पर शर्मिंदा भी नहीं हैं। वो शादियों में जाते हैं जहाँ उन्हें वायरस लग जाता है।
तुर्की मालूमात छुपाने के इल्ज़ाम की तरदीद करता है। हालिया दिनों में हुकूमत ने कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे की वजह से नई पाबंदियां आयद की हैं। अब घरों के बाहर मास्क पहनना लाजमी है और शादियों जैसी समाजी तकरीब में घुलने मिलने और अशाया वगैरह देने पर पाबंदी है, जबकि तकरीब की हद 1 घंटा मुकर्रर की गई है। हेनरी डिजवेल के साथ सबा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया में कई ममालिक तो इस वक्त कोरोना वायरस की पहली लहर से ही निमट रहे हैं, जैसा कि अमेरिका, इंडिया या ब्राज़ील को अगर हम देखते हैं, जैसे और कई ममालिक। लेकिन इसके अलावा अगर हम इजराइल में बात करें तो कोविड-19 की दूसरी लहर के बायस एक बार फिर मुल्क गिर लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। केसेस की यौमिया तादाद तकरीबन 5000 की नई सतह पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद गुज़िश्ता जुमे से मुल्क भर में 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का आगाज़ किया गया है। कई अस्पतालों ने रिपोर्ट दी है कि उनके पास कोरोना वायरस के नए मरीजों के लिए जगह भी नहीं है। मुल्क भर में फैलने वाले वायरस से सबसे ज़्यादा इंतहाई क़दामत पसंद फ़िरक़ों के यहूदी और अरब इजरायली मुतासर हुए हैं। यरूशलेम की मगरबी दीवार पर आमतौर से यहूदियों के नए साल की तकरीब रोश हशाना से कई रोज़ पहले हज़ारों इबादत गुजारों का हुजूम होता है, लेकिन इस साल समाजी फासले को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को छोटे छोटे महदूद ग्रुपों में आने दिया जा रहा है। रोश हशाना वो दिन है जो बुनियादी तौर पर इबादत में गुजरता है और ज़्यादातर दुआएं बड़े पैमाने पर इज्तिमाआत में की जाती हैं। लिहाजा अब तमाम यहूदी इबादत गाहों को फ़िक्र लाहक है, क्योंकि वो कवायद पर अमल करना चाहती हैं। इस वक्त एक बंद जगह पर सिर्फ 10 अफराद की इजाज़त है या खुली जगह पर सिर्फ 20 अफराद की। यहाँ तक कि वो लोग जो बहुत बड़ी खुली जगह पर इबादत की मनसूबाबंदी कर रहे थे, अब तमाम कवायद और ज़वाबित की पाबंदी के लिए कोशिशें तेज़ कर रहे हैं। are scrambling now to keep to all of the regulations. कोरोना वबा के आगाज़ से ही इंतहाई क़दामत पसंद मसलकों से ताल्लुक़ रखने वाले यहूदी वबा का सबसे ज़्यादा शिकार हुए हैं। बहुत से लोग इज्तिमाई इबादत पर पाबंदियों को नज़रअंदाज करते रहे। इसराइली अरब जो आबादी में 20% से ज़ायद हैं, इनमें भी बड़ी तादाद में केसेस सामने आए, क्योंकि शादियों की बड़ी तकरीबात जारी रखी गईं। उम्म अल-फहम के इलाके में शादी ब्याह की तकारीब कोरोना केसेस का बायस बनी। अब रोजाना की रिपोर्ट्स में कोरोना वायरस मुसलसल बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। ये तबाकुन है। हमने लोगों को मुतनब्बे किया, लेकिन लोगों ने तवज्जो नहीं दी। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात उन्होंने हिदायत को नज़रअंदाज किया और अब हम हुक्काम से मुतालबा करते हैं कि लोगों से सख्ती से पेश आएँ। ये उनकी भलाई के लिए है ताकि हालात को काबू में रखा जा सके। नए मुल्कगीर लॉकडाउन से स्कूल, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सरकारी दफातर और बहुत से कारोबार बंद हो गए हैं। लोगों को खाना और दवाई खरीदने के सिवा अपने घरों से सिर्फ 500 मीटर तक सफ़र करने की इजाज़त है। पुलिस का कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माना आयद होगा। इसराइली पुलिस की मदद से हुकूमती फैसले पर अमल दरामद होगा, जिसमें हज़ारों पुलिस अफसरान शामिल हैं जो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि पूरे मुल्क में मुकम्मल कर्फ्यू और लॉकडाउन अमल में लाया जाएगा। इसराइल की क़यादत ने पहला लॉकडाउन मार्च और अप्रैल में नाफिज किया था। ये दुनिया में इब्तिदाई और कामयाब तरीन कोशिशों में से एक था। मईशत को दोबारा शुरू करने और शहरियों की आसानी के लिए हुकूमत ने मई में ज़्यादातर पाबंदियां ख़त्म कर दी, जिससे मज़ीद कारोबारी इदारों को काम करने का मौका मिला। लेकिन नाक़दीन कहते हैं कि वबा से निमटने के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं था। वायरस कभी नहीं थकता, ये अंधेरे में रहता है और मौके का इंतजार करता है। और एक बार जब हमने मईशत को बहुत तेजी से और पीछे देखे बगैर दोबारा खोल दिया, तो दीगर सरगर्मियां भी शुरू हो गईं। और जब मसला दोबारा शुरू हुआ तो अलामत पर भी तवज्जो नहीं दी गई। वबा के खिलाफ मुनासिब मनसूबाबंदी में नाकामी की शिकायत के साथ शहरी पहले ही महीनों एहतजाज कर चुके हैं और अब बहुत से इसराइलियों को सियासतदानों और तिबी हुकाम पर दोबारा एतमाद करने की वजह कम ही नजर आती है। लिंडा ग्रैंडस्टीन की रिपोर्ट के साथ नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। शुक्रिया 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 कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का, शुक्रिया पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रजाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का, शुक्रिया हुकूमती अहलकारों का, सहाफियों का और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे।
امریکی سپریم کورٹ میں طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والی جسٹس روتھ بیڈر گنزبرگ کا 87 برس کی عمر میں جمعے کے روز انتقال ہوا تھا۔ جسٹس گنزبرگ کے انتقال پر سپریم کورٹ میں قومی پرچم سرنگوں کیا گیا۔ جسٹس روتھ بیڈر گنزبرگ کا شمار ایک باہمت، پرعزم اور خواتین کے حقوق کی علمبردار کے طور پر کیا جاتا رہا ہے۔ امریکہ میں اس وقت جب صدارتی انتخابات میں 1.25 ماہ سے بھی کم کا عرصہ رہ گیا ہے، بائیں بازو کے نظریات کی حامی جسٹس روتھ بیڈر گنزبرگ کی موت سے انتخابی مہم میں بحث کا رخ بدل گیا ہے۔ صدر ٹرمپ اسی ہفتے امریکی سپریم کورٹ میں مرحومہ جسٹس گنزبرگ کے متبادل امیدوار کے نام کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، تاہم ڈیموکریٹس اس کے خلاف ہیں۔ سپریم کورٹ میں اس وقت قدامت پسند نظریات کے حامل ججوں کو 4 کے مقابلے میں 5 کی برتری حاصل ہے۔ امریکہ میں سپریم کورٹ کے جج کی تعیناتی تاحیات ہوتی ہے۔ جسٹس گنزبرگ کے انتقال کے بعد بہت سے لوگ سپریم کورٹ کی عمارت کے چاروں طرف جمع ہوئے اور انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ گزشتہ جمعے کو اس دنیا سے چلی جانے والی امریکی سپریم کورٹ کی جسٹس روتھ بیڈر گنزبرگ کی یاد میں سپریم کورٹ کے چاروں اطراف موم بتیاں، پھول اور ہاتھوں سے لکھے خطے پڑے ہیں۔ جسٹس روتھ گنزبرگ کی صحت پچھلے کئی سالوں سے گر رہی تھی، مگر ان کی موت نے صدر ٹرمپ سمیت بہت سے امریکیوں کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ انہوں نے حیرت انگیز زندگی گزاری، آپ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ چاہے آپ تسلیم کریں یا نہیں، وہ ایک باکمال خاتون تھی جس نے ایک زبردست زندگی گزاری۔ مجھے ان کی وفات پر واقعی افسوس ہے۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ قانون کے پیشے میں نہ صرف غیر معمولی قابلیت کی حامل تھی بلکہ ایک پسندیدہ شخصیت بھی تھیں۔ وہ قانون دان ہونے کے ناطے انصاف اور مساوات کے اعلیٰ امریکی نظریات پر عمل پیرا تھیں اور روتھ گنزبرگ نے ہم سب کے لیے جدوجہد کی۔ میں کسی ایسی خاتون کو نہیں جانتی جو ان کی موت سے متاثر نہیں ہوگی۔ میں کسی ایک عورت کو بھی نہیں جانتی۔ جسٹس گنزبرگ کی خواتین کے حقوق کے لیے وکالت نے انہیں صرف قانون کے شعبے میں ہی مقبولیت نہیں دی بلکہ انہیں امریکی پاپ کلچر کا بھی حصہ بنا دیا۔ لوگوں نے گنزبرگ کے نام کے مخفف کو لے کر دی نوٹوریس RBG پکارنا شروع کر دیا تھا، جو مشہور ریپ گلوکار نوٹوریس B.I.G سے ملتا جلتا ہے۔ عوام میں ان کا رتبہ اور بھی بڑھ گیا جب یہ پتا چلا کہ وہ 80 برس کی عمر میں بھی روزانہ جم جاتی تھیں، اور ان کا یہ معمول کرونا وائرس کے دوران بھی جاری رہا۔ گنزبرگ کو بروکلن نیو یارک کے اس علاقے میں بھی خراج تحسین پیش کیا گیا جہاں وہ پلی بڑھیں۔ آج اس گھر کے مالک ولیم برنسن ہیں جہاں جسٹس روتھ گنزبرگ کا بچپن گزرا تھا۔ ہم 47 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، ہم ان کا نام سال ہر سال سنتے ہیں تو ان کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور امریکہ میں بسنے والے یہودیوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ گنزبرگ کا انتقال یہودیوں کے نئے سال کے موقع پر ہوا، لیکن یہ ان کا خواتین کے حقوق کا زبردست دفاع تھا جس کے لیے لوگ انہیں سب سے زیادہ یاد کر رہے ہیں۔ وہ خواتین کے حقوق کے لیے کھڑی ہوئیں، ان کو آسانی سے پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا تھا اور ان کے دل میں صرف لوگوں کا بہترین مفاد تھا۔ انہوں نے بہت سارے مردوں کے مقابلے میں دنیا کو مختلف انداز سے دیکھا۔ میں ان کا بہت احترام کرتی ہوں۔ گنزبرگ کو سن 2010 میں وفات پانے والے ان کے شوہر مارٹی کے پہلو میں آرلنگٹن قومی قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اسٹیو فریڈش کے ساتھ ایرم عباسی، وائس آف امریکہ۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور اس پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے اور امریکی انتخابات پر اہم خبریں جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج facebook.com/VOA اردو پر۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔